Hello student, myself Professor Anjali Patel from Profil PBA College, subject Principles of Management, subject code 105. As in your previous video, we have learned that what is the objective of learning this subject. The main objective is to make familiar and aware about the fundamental principle of management. And the second objective is being to acquire the various functional areas of management. After that, you have just see the contents of your syllabus of unit. Total 4 यूनिट है. Then in unit number 1 से आपका syllabus जो है वो start हो रहा है. So unit number 1 से हम हमारा जो principle of management का syllabus है we will start it. So we were starting with our unit number 1, that is nature and scope of management. This chapter is all about the nature and scope of management. Now what you are going to learn about is what is exactly about management. ठीक है? Why do we need a management? What is the importance of management? What are the elements of management? What is the role of manager? ठीक है? You will learn about the management thoughts. ठीक है? You will learn about management is a science or art or both. ठीक है? So you know very well what are the contents of unit number 1, because in previous video I have just explained you the contents of unit number 1. Today we will just understand the meaning and definition of management. Now let's see what is management all about. So management is one type of an activity which is necessary for a group of people towards achievement of common goal. Management is one type of an activity. How we can say it is an activity? Take an example of your home only. At your home, your mother is being arranging all resources which is required for the family, like all the requirement as per the needs of family are being arranged by mother. जैसे कि आपको बॉर्नपीडिया जैसे कि आपको मिल्क पीना है तो that will be arrangement of that milk also. If you want to have a snacks, there will be arrangement of snacks also by your mother. So management is one type of an activity which is being performed by your mother to manage your family. So like that only in business also management क्या होता है is one type of an activity which is necessary for the group of people for the achievement of the common goal. Now I have used the word common goal. Now common goal क्यों? ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हो यू आर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होगा जहाँ पे सारे एम्प्लॉय सारे ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ एम्प्लॉयज जो होंगे ना दे विल ऑलवेज वर्क फॉर द कॉमन गोल. Now management ये है कि it is one type of a process of planning, organizing, directing and controlling also. Management is to manage the people tactfully for the goal. Management मतलब क्या हुआ कि हमें लोगों को मैनेज करना है tactfully, so अब अपना जो गोल है वो अचीव हो. तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर वो बिग हो कि स्मॉल हो, वेदर इट इज अ प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट बिजनेस, वेदर वो सर्विस बिजनेस हो कि मैन्युफैक्चर बिजनेस. मैनेजमेंट इज बीन रिक्वायर्ड फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, आइदर वो बिग और स्मॉल बिजनेस हो, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट बिजनेस हो, सर्विस और मैन्युफैक्चर बिजनेस है. सो मैनेजमेंट इज बीइंग consist of series of interrelated functions that are performed by all the managers. So let us see what is meaning of management. So you can see the meaning of management. So management is a thing but an art of getting a things done. Management is a thing but an art of getting a things done by the group of people with the effective utilization of the resources which are available. Now जब आपको resources जो available है वो आपको दिए जाए और आपको अपनी skill से आपकी knowledge से आपको काम करवाना है, that is nothing but a management. So management is nothing but an art of getting things done by the group of people. ठीक है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो अपनी नॉलेज से अपनी स्किल से वो इफेक्टिव वे में अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करके वो मैनेज करते हैं. तो मैनेजमेंट इज नथिंग बट एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल विद इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. मैनेजमेंट कैन बी एन एक्ट एज अ गाइड टू ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप चीजों को अच्छे से मैनेज करोगे तो ये आपके लिए गाइडलाइन बन जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन में बंदे काम कर रहे हैं, और उसके कारण यू कैन कोऑर्डिनेट योर एफर्ट्स टुवर्ड्स योर अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज मीन फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव. नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. नाउ एज पर द डेफिनेशन यू कैन सी
अकॉर्डिंग टू कुंस, उसने क्या बोला है मैनेजमेंट को, उसने कैसे वे में डिफाइन किया है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग and maintaining an environment in which individual working together in a group effectively achieve the selected aim. Now let us understand this definition. Management को एक प्रोसेस है जिसे हम डिजाइन करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं एज पर द एनवायरमेंट विच इज वर्किंग इन अवर मार्केट. मार्केट में जो एनवायरमेंट है उसी हिसाब से हमारे बिजनेस में वही एनवायरमेंट के बेस में हम काम करते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल को ग्रुप में का तो साथ में काम करना होगा जस्ट टू अचीव द सिलेक्टेड गोल और एम. ठीक है, दैट वाज द डेफिनेशन एज पर योर कुंस. ठीक है, नाउ व्हाट इज डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्रिंटल? मैनेजमेंट is nothing but a process of working with and through other. जब भी मैनेजर जो होगा ना वो एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए का तो काम करने के लिए वो काम दे रहा है एम्प्लॉयज को, तो उसमें एम्प्लॉय से वो काम तो ले ही रहा है. मैनेजमेंट इज नथिंग बट एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर. तो वो दूसरे से काम तो ले रहा है मैनेजर, बट उसके साथ उसको खुद को भी काम करना होगा. इसलिए यहाँ पे क्लियरली बोला है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर. आपको भी काम करना है, दूसरे से भी काम करवाना है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम इफेक्टिवली वे में अचीव कर सकते हैं और एफिशिएंट वे में हम हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं. इन मैनेजमेंट इज एन प्रोसेस वर्किंग with and through other, through which we can achieve our organization objective effectively and efficiently by using the limited resources, because resources are limited in the change in environment where consumer tastes and preferences change, where your market scenario change, where your technology change. तो वो changing environment में आप अपने resources को proper utilization करके आप अपने goal को achieve करोगे effectively and efficient way. That is a management. Now the another definition, simple definition, has for the Frederick Taylor, who is a father of scientific management. उसने क्या बोला मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट इज नथिंग बट एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करोगे, टाइमिंग, एंड सी दैट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. व्हाट टू डू मतलब क्या करना है हमें, प्लान क्या है, व्हेन टू डू वो प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, टाइम पीरियड कितना है, एंड सी दैट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, कि वही चीज हम बेस्ट तरीके से और एट द मिनिमम कॉस्ट से हम ये काम कर सके. दैट इज योर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक टेलर. अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने मैनेजमेंट के बारे में क्या बोला कि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल इज नथिंग बट मैनेजमेंट. मैं आप सभी से काम करवाऊंगी, दैट इज माई मैनेजमेंट. ये पूरे सब्जेक्ट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मेरी आर्ट होगी कि हाउ आई कैन टीच यू इन अ बेटर एंड इफेक्टिव वे एंड हाउ आई कैन यूटिलाइज यू इन टीचिंग दिस सब्जेक्ट. दैट इज माई आर्ट. सो आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल इज नथिंग बट अ मैनेजमेंट. Another definition on the basis of the function oriented is that management is a process which involve planning, which involve organizing. Planning मतलब what to do, when to do, why to do and how to do. Planning मतलब क्या होगा, when to do, how to do, why to do, when to do. ठीक है, where to do, that is your planning. वो प्लान को हम उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो प्लानिंग के लिए हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे रिसोर्सेज को. तो यहाँ पे आफ्टर प्लानिंग यू विल ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज एंड देन यू विल रिक्रूट योर एम्प्लॉयज. राइट प्लेस पे राइट टाइम में राइट एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, दैट इज योर स्टाफिंग. देन यू विल गिव डायरेक्शन टू योर एम्प्लॉय एंड देन यू विल कंट्रोल योर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड एंड दैट नीड एन ह्यूमन एफर्ट्स टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो हैज पर द डेफिनेशन, फंक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ प्रोसेस वेयर वी यूज टू डू प्लानिंग, वेयर वी यूज टू हैव ऑर्गेनाइज्ड resource, where we used to have a staffing and manage the human resources, where we used to give direction to our employees, where we used to control the human efforts to achieve our objective in an organization. So that is the definition as per the function oriented. So management की definition जो है, there are many definition of management, whichever easier definition you think you can write down.
ठीक है. नाउ यू नो वेरी वेल मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट इज नथिंग बट एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने खाली मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड just go through the video and just learn the meaning of management and definition of management. Okay students, thank you students for listening.